پھر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ نیم تاریک تھا۔ وہ جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھی، اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ دائیں طرف دیوار کے ساتھ ایک پڑی ہوئی کرسی پر ایک انسانی ڈھانچہ بندھا ہوا پڑا تھا۔ دریاب پلٹ کر دروازے کی طرف دوڑی۔ دروازے میں وہ کسی سے ٹکرا کر گر پڑی۔ اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے سامنے دیو قامت خاموش کھڑا تھا۔ اندھیرے میں بھی اس کی سرخ آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ دریاب انتہائی دہشت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے اپنے سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس دوران دریاب اس سے 15 قدم آگے نکل چکی تھی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ اس کے اور کندن کے درمیان چھت سے مٹی تیزی سے گر رہی تھی۔ وہ واپس پلٹی، لیکن وہ ابھی چند قدم دور ہی تھی کہ اس جگہ سے چھت بیٹھ گئی جہاں سے مٹی گری تھی۔ دریاب کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی۔ وہ پلٹ کر تیزی سے مخالف سمت میں دوڑی۔ دوڑتے ہوئے اس نے کندن کی چیخ بھی سنی تھی۔ پھر سناٹا چھا گیا۔ دریاب کئی گز دور جا کر رک گئی اور اس نے پیچھے مڑ کر ٹارچ کی روشنی سے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا سا محسوس ہوا۔ سرنگ بند ہو گئی تھی اور واپسی کا راستہ مسدود ہو چکا تھا۔ وہ چند لمحے اپنی جگہ خاموش اور بے حس و حرکت کھڑی رہی، پھر زور زور سے چیخنے لگی۔ وہ کندن کو پکار رہی تھی مگر اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کی اپنی آواز سرنگ کی تاریکی میں تحلیل ہو رہی تھی۔ دریاب نے ٹارچ ایک طرف زمین پر رکھ دی اور دونوں ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگی۔ وہ بری طرح ہانپ گئی تھی۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا، لیکن چند کلو سے زیادہ مٹی نہیں ہٹا سکی اور اس کا ایک ناخن بھی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ایک طرف کھڑی ہو کر ہانپنے لگی اور اس کے چہرے پر خوف کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ متوش نظروں سے مٹی کے اس انبار کو دیکھ رہی تھی جس نے راستہ بند کر دیا تھا۔ اس نے ٹارچ اٹھا لی اور اس کی روشنی میں آگے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ جان چکی تھی کہ مٹی ہٹا کر راستہ بنانا اس کے لیے ممکن نہیں۔ اسے سرنگ میں آگے جا کر راستہ تلاش کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ سوچ کر وہ کام گئی تھی کہ اگر اسے باہر نکلنے کا راستہ نہ ملا تو وہ انہی سرنگوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گی۔ اسے بہرحال ایک امید یہ بھی تھی کہ کندن اور رزمک بھی سرنگ میں موجود ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی سرنگ ہو جو ان لوگوں کو ایک دوسرے سے ملا دے۔ وہ سرنگ میں آگے کی طرف چلنے لگی۔ تقریباً 20 گز کے بعد سرنگ بائیں طرف مڑ گئی۔ دریاب جیسے ہی اس طرف مڑی ٹھٹک کر رک گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کا نام لے کر پکار رہا ہو۔ آواز مردانہ تھی۔ وہ پوری توجہ سے اس آواز کو سننے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ آواز دوبارہ سنائی نہیں دی اور وہ اسے اپنا وہمہ سمجھ کر آگے چلنے لگی۔ وہ آواز ایک بار پھر سنائی دی اور یہ اس کا وہمہ نہیں تھا۔ دریاب نے آواز پہچان لی تھی۔ زرمک اسے پکار رہا تھا۔ دریاب تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی آگے چلنے لگی اور وہ پھر ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سرنگ پھر 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ دریاب اندازہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ آواز کس طرف سے سنائی دی تھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی اور پھر دائیں طرف مڑ گئی۔ آگے سرنگ بند تھی اور اس کے سامنے دیوار تھی۔ دریاب کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی اور تمام سرنگوں کی دیواریں اور چھتیں کچی تھی، لیکن اس جگہ پختہ دیوار دیکھ کر اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ اس جگہ کوئی خفیہ راستہ موجود تھا۔ وہ اس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے اسے چونک جانا پڑا۔ دیوار کے دوسری طرف سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ آوازیں اگرچہ نمایاں نہیں تھی، لیکن ان میں خامس کی آواز اس نے پہچان لی تھی جو کسی ناراض بچے کی طرح چیخ رہا تھا۔ زرمہ کی آواز سن کر وہ ایک بار پھر چونک گئی اور اس مرتبہ یہ آواز سرنگ میں زیادہ قریب سے سنائی دی۔ دریاب مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی چلنے لگی۔ موڑ پر پہنچ کر وہ رک گئی۔ بائیں طرف کی سرنگ میں ٹارچ کی روشنی دکھائی دی اور اس کے ساتھ ہی زرمہ کی آواز بھی سنائی دی جو اس کا نام لے کر پکار رہا تھا۔ دریاب دوڑتی ہوئی ان کے قریب پہنچ گئی اور بالہانہ انداز میں کندن سے لپٹ گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو، کندن نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ سرنگ بیٹھ جانے سے میری تو جان ہی نکل گئی اور ہم نے تمہیں بہت آوازیں دیں مگر شاید آواز تم تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ مٹی ہٹانا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ کوئی بیلچہ یا پھاوڑا ہوتا تو ایسی کوشش کی جا سکتی تھی۔
खाली हाथों से मट्टी हटाकर रास्ता बनाना मुश्किल था और हमने दूसरी सुरंगों के जरिए फौरन ही तुम्हारी तलाश शुरू कर दी। खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा सलामत हमें मिल गई हो। मेरा ख्याल है कि मैंने वो जगह तलाश कर ली है जहां जागीरदार निमरान को कैद में रखा गया है, ज़रियाब ने कहा। क्या वाकई? कुंदन की आंखों में चमक सी उभर आई। बाबा को देखा है तुमने? नहीं, देखा नहीं है, ज़रियाब ने जवाब दिया। उस जगह सुरंग बैठने के बाद मैं दहशत सी हो गई थी। मैंने हाथों से मट्टी हटाने की कोशिश भी की, लेकिन खाली हाथों से रास्ता बनाना मुमकिन नहीं था। और फिर तुम्हारी तरह मेरे ध्यान में भी यही ख्याल आया कि सुरंगों में घूमकर तुम लोगों को तलाश करने की कोशिश की जाए। मैंने रज़मक की आवाज़ भी सुन ली थी जो मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। तुम ही लोगों की तलाश में मैं एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां पुख्ता दीवार के जरिए आगे रास्ता बंद है। उस दीवार की दूसरी तरफ मैंने गोपांग और खामस की आवाज़ें सुनी। मुझे यकीन है कि तुम्हारे बाबा भी वहीं मौजूद हैं। चलो उस जगह तक हमारी रहनुमाई करो। कुंदन ने उसके खामोश होने पर कहा। ज़रियाब उनकी रहनुमाई करती हुई उस सुरंग में आ गई जहां पुख्ता दीवार ने रास्ता रोक रखा था। ज़रियाब ने होठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और फिर टार्च से पुख्ता दीवार पर रोशनी डालने लगी। कुंदन और रज़मक भी रोशनी में दीवार का जायजा ले रहे थे और फिर उन तीनों ने दीवार से कान लगा दिए और कोई आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस तरफ से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। कुंदन टार्च की रोशनी में दीवार के एक एक इंच हिस्से का जायजा ले रही थी और उसकी तवज्जो दीवार के निचले हिस्से पर मरकूज थी। दीवार के साथ फर्श पर भी दो दो ईंटें लगी हुई थी। कुंदन को यकीन था कि यहाँ अगर वाकई को खुफिया रास्ता है तो उसका मैकेनिज्म फर्श की इन्हीं ईंटों में होगा। हर ईंट पर मुख्तलिफ अंदाज में दबाव डालकर ही आजमाया जा सकता था। वो पहली ईंट पर पैर रखना ही चाहती थी कि ज़रियाब ने उसे रोक दिया और होंठों पर उंगली रखते हुए दीवार की तरफ इशारा किया। वो गुस्से में भरी हुई मर्दाना आवाज़ थी जो ज़रियाब की समाज से टकराई थी। कुंदन और रज़मक ने भी दीवार से कान लगा दिए। वो आवाज़ शिनाख्त करने में उन्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वो गोपांग था जो गुस्से में चीख चीख कर कुछ कह रहा था, लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। उसके थोड़ी ही देर के बाद एक चीख की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। कोई आदमी चीखा था। मुमकिन है कि वो बहुत ज़ोर से चीखा हो, मगर दीवार की वजह से वो आवाज़ ज़रा हल्की महसूस हुई थी, लेकिन उस आवाज़ से चीखने वाले के कर्ब का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। चंद सेकंड बाद एक और चीख सुनाई दी और उसके बाद खामोशी छा गई। खामोशी तवालत इख्तियार करती गई और वो तीनों दीवार से कान लगाए खड़े थे, मगर 15-20 मिनट गुजरने के बाद भी मजीद कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो कुंदन दीवार के करीब फर्श की ईंटों पर रोशनी डालते हुए एक बार फिर मैग्नीशियम तलाश करने की कोशिश करने लगी और उसने 7वीं ईंट पर पैर रखा तो ईंट दबती चली गई। कुंदन के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो हवेली के खुफिया रास्तों के मैग्नीशियम तरीक़ेकार से वाकिफ थी। उसने पहली ईंट दबाने के बाद पैर हटा लिया और बाईं तरफ एक ईंट छोड़कर उसके आगे वाली ईंट पर पैर रखकर उसे दबा दिया। दीवार अपनी जगह से हिलने लगी और उन तीनों ने टार्चें बुझा दी। रज़मक चाकू संभाल कर तैयार हो गया और उसकी नज़रें दीवार में पैदा होने वाले रखने पर थीं जो बेतदरीज फैलता जा रहा था और बिल आकर दीवार में 2.5 फुट चौड़ी खिला पैदा हो गई। दूसरी तरफ गहरी तारीकी थी। रज़मक बड़ी आहिस्तगी से दीवार के खिला से निकलकर दूसरी तरफ आ गया और बेहिस्सो हरकत खड़ा किसी भी किस्म की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी और उसने टार्च रोशन कर ली। वो एक वसी और अरीज कमरे में था और जिसमें किसी रूह का नामो निशान तक नहीं था। कुंदन और ज़रियाब भी दीवार के खिला से बाहर आ गई थी और उन्होंने भी अपनी अपनी टार्च रोशन कर ली और तीनों कमरे का जायजा ले रही थीं। कमरे में एक बड़ी सी मसहरी बिछी हुई थी और उस पर बिस्तर भी मौजूद था। उसके साथ एक छोटी मेज थी जिस पर पानी का जग, एक गिलास और मुख्तलिफ दवाओं की 3-4 खाली बोतलें, एक चमचा और एक खाली कप रखा हुआ था। मसहरी के करीब फर्श पर चप्पलों का एक जोड़ा पड़ा हुआ था। कार्नस पर लैंप रखा हुआ था, लेकर बुझा हुआ था। एक दीवार की खूंटी पर चंद मर्दाना कपड़े टंगे हुए थे और उनमें वो जोड़ा भी था जो उस रोज़ ज़रियाब ने जागीरदार निमरान के जिस्म पर देखा था। उसे समझने में देर नहीं लगी कि निमरान कुछ देर पहले इस कमरे में मौजूद था, लेकिन अब वो लोग उसे कहीं और ले गए थे।
कुछ देर पहले तक तुम्हारे बाबा इसी कमरे में थे, ज़रियाब ने कहा, और ये कपड़े उन्हीं के हैं। उसने खोंटी की तरफ इशारा किया। और जब वो मेरे कमरे में आए थे तो उन्होंने ये लिबास पहन रखा था। मैं अपने बाप की खुशबू महसूस कर रही हूँ, कुंदन ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, और आगे बढ़कर उसने खोंटी पर से वो जोड़ा उतार लिया जिसकी तरफ ज़रियाब ने इशारा किया था। उसने कपड़ों को अपने सीने से लगा लिया और उसके चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आए थे। वो लोग बाबा को न अब अनजाने कहाँ ले गए होंगे। वो जागीरदार को सवेली से बाहर नहीं ले जा सकते। ज़रमक ने कहा, और इस तरफ आओ, शायद हमें यहाँ कोई रास्ता मिल जाए। उसने टार्च की रोशनी से बाएं तरफ की दीवार में एक महराबी रास्ते की तरफ इशारा किया। ये एक बाकायदा दरवाजे की तरह रास्ता था, लेकिन उसमें चौखट वगैरह नहीं थी। वो उस महराबी रास्ते से गुजरकर दूसरी तरफ आ गए। ये भी एक कमरा था, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं था। यहाँ भी बेड पर बिस्तर बिछा हुआ था। खोंटी पर 2-3 जनाना कपड़े टंगे हुए थे और बेड से नीचे सैंडल्स के 2 जोड़े रखे थे। बेड के करीब एक छोटी सी मेज पर 8-10 किताबें रखी हुई थी। वो सब नावल थे जो गालबन नए खरीदे गए थे। दीवार के करीब एक कुर्सी भी रखी हुई थी। उन लोगों को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये उस नर्स का कमरा था जो निमरान की देखभाल के लिए रखी गई थी, लेकिन वो नर्स भी गायब थी। कुंदन और अजमक दोनों कमरे में कोई खुफिया रास्ता तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं हो सकी। हालांकि वो अच्छी तरह जानते थे कि यहाँ कोई और रास्ता भी मौजूद है, मगर तलाश बसियार के बावजूद उन्हें वो रास्ता नहीं मिल सका। बिल आखिर वो जिस रास्ते से उस कमरे में दाखिल हुए थे, उसी रास्ते से दोबारा सुरंग में आ गए। बाबा की तलाश के लिए हमें कोई और तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, रज़मक ने सुरंग में चलते हुए कहा। कौन सा तरीका? कुंदन ने पूछा। बताऊंगा, अभी कोई बात मेरी जहन में वाज़े नहीं, रज़मक ने कहा। और वो लोग ज़रियाब वाले कमरे के खुफिया रास्ते के सामने पहुंच कर रुक गए। मैग्नीशियम को हरकत में लाने से पहले उन्होंने इत्मीनान कर लिया था कि कमरे में कोई मौजूद तो नहीं। जब दीवार चाक हो रही थी तो रज़मक किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए चाकू हाथ में लिए तैयार खड़ा था। कमरे में तारीकी थी। वो बड़ी एहतियात से दीवार से बाहर आ गए। ज़रियाब ने टार्च रोशन करके देखा, उसका सूटकेस और दीगर चीजें गायब थी। हालांकि जब वो पहले इस कमरे में आए थे तो तमाम चीजें मौजूद थीं। रज़मक ने दरवाजे के करीब पहुंच गया और उसने दरवाजा खोलना चाहा तो उसे बेहद मायूसी हुई। दरवाजा बाहर से बंद था। गालबन बाहर से ताला लगा दिया गया था। ज़रियाब उस वक्त टार्च बुझा चुकी थी। कमरे में तारीकी थी। दरवाजा बाहर से बंद है। रज़मक ने आवाज ज़रियाब की समाज से टकराई। ओहो! और ज़रियाब के मुंह से बेख्तियार निकला, यहाँ तो खिड़कियों पर भी आहनी सलाखें लगी हुई हैं। वापस चला जाए, रज़मक ने कहा। इस खुफिया रास्ते की तमाम सुरंगें हमें उसी कमरे तक ले जाएंगी जहाँ से हम होकर आ रहे हैं, और उस कमरे से आगे रास्ते हमें मालूम नहीं, इसलिए वापस जाना बेकार है। 1 मिनट, ज़रियाब ने कहा। और इस तरफ रोशनदान में 2 सलाखें टूटी हुई हैं। अगर एक सलाख और निकाल दी जाए तो हम रोशनदान से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन रोशनदान तक कैसे पहुंचा जाए? कुंदन ने कहा। ये मसहरी दीवार के साथ खड़ी कर दी जाए तो रज़मक आसानी से रोशनदान तक पहुंच सकता है, ज़रियाब ने जवाब दिया। रज़मक कमरे के वस्त में आकर रोशनदान की तरफ देखने लगा। रोशनदान से आसमान पर झिलमिलाते हुए 1-2 सितारे नजर आ रहे थे, और उसके अंदाजे के मुताबिक रोशनदान की सलाखें 6-6 इंच के फासले पर थीं। 2 सलाखें निकली हुई थी। अगर तीसरी सलाख भी निकाल दी जाए तो 18 इंच जगह बन सकती थी और उसमें से आसानी से निकल सकते थे। रोशनदान खासा कुशादा था। हवा के रुख पर होने की वजह से ठंडी हवा के झोंके अंदर आते महसूस हो रहे थे। ये ठीक है, वो बोला, और पहली मसहरी को यहाँ लाना होगा। उन तीनों ने मिलकर पहले बिस्तर उठाकर जमीन पर रखा, फिर मसहरी को उठाकर बड़ी एहतियात से उसे रोशनदान के नीचे दीवार के साथ खड़ा कर दिया। रज़मक मसहरी पर चढ़ गया और उसके कंधे रोशनदान के बराबर आ गए। वो सलाखों को टटोल कर देखने लगा। सलाखें लकड़ी के फ्रेम में लगी हुई थी और 2 सलाखें हिल रही थीं। ज़रमक ने जेब से चाकू निकाला और एक सलाख के करीब से लकड़ी काटने लगा। उसे मायूसी नहीं हुई और पहली सलाख बड़ी आसानी से निकल गई, और उसने सलाख हाथ बढ़ाकर दूसरी तरफ कमरे की छत पर रख दी और दूसरी सलाख निकालने के लिए लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटने पर चाकू चलने की हल्की सी आवाज आ रही थी। उसे अंदेशा था कि सन्नाटे में यह हल्की सी आवाज भी कहीं सुन ना ली जाए, इसलिए वह रुक रुक कर चाकू चला रहा था।
लकड़ी कट गई और रजमक ने सलाख बाहर की तरफ खींची तो वो अपनी जगह से तो निकल गई, लेकिन उसके हाथ से भी छूट गई और बरामदे की छत किसी कदर ढलवान थी। लोहे की सलाख जोरदार आवाज से छत पर गिरी और शोर मचाती हुई ढलान पर लड़कने लगी और बिल आकर धप की आवाज से बरामदे के सामने कच्ची जमीन पर गिर गई। सलाख लड़कने की शोर की आवाज सन्नाटे में दूर तक फैल गई। जरमक को यकीन था कि यह आवाज गोपांग या खामस ने सुन ली होगी, क्योंकि गोपांग का कमरा और किचन माली इमारत वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। जल्दी से ऊपर आ जाओ, जरमक ने नीचे की तरफ देखते हुए सरगोशी की। लोहे की सलाख मेरे हाथ से छूट कर गिरी है। उन दोनों में से किसी ने अगर आवाज सुन ली होगी तो वह इस तरफ आने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। जरियाब पहले कुंदन को ऊपर भेजना चाहती थी, मगर कुंदन ने जरियाब का हाथ पकड़कर उसे आगे धकेल दिया। जरियाब मसहरी पर चढ़कर जरमक के बराबर पहुंच गई। जरमक ने उसे सहारा देकर रोशनदान की दूसरी तरफ निकाल दिया। छत डलवान है, एहतियात से लेट जाओ, खड़े होने की कोशिश मत करना। जरमक ने सरगोशी की और फिर किचन वाली इमारत के करीब टारच की रोशनी देखकर बुरी तरह चौंक गया। वो खामस या गोपांग में से जो कोई भी था उसी तरफ आ रहा था। कुंदन जल्दी करो, कोई आ रहा है। जरमक ने नीचे की तरफ रुख करके सरगोशी की। कुंदन बड़ी तेजी से मसहरी पर चढ़ गई और जरमक ने सहारा देकर उसे भी रोशनदान से दूसरी तरफ पहुंचा दिया और फिर खुद भी दोनों हाथ रोशनदान के फ्रेम पर जमाकर उसने अपने पैरों को जोरदार झटका दिया। मसहरी पैरों तलों से निकलकर एक जोरदार धमाके से फर्श पर गिरी। जरमक रोशनदान से लटका हुआ था और उसने सामने देखा। सामने वाली इमारत से निकलने वाला आदमी बाकायदा दौड़ने लगा था। मसहरी गिरने की आवाज गालबन उसने भी सुन ली थी। जरमक अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाने लगा और उसने अपने जिस्म को जोरदार झटका दिया। उसका सीना रोशनदान के फ्रेम पर टिक गया और वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता आगे खींचने लगा और बिल आकर रोशनदान से निकलकर बरामदे की ढलवा छत पर पहुंच गया और दरियाब के करीब ही लेट गया। वो आदमी अब बरामदे के सामने पहुंच चुका था और उसके हाथ में जलती हुई टारच की रोशनी में उन्होंने उसे पहचान लिया। वो खामस था। खामस ने बरामदे में दाखिल होकर दरवाजे का कुंडा खोला, दरवाजे को जोर से ठोकर मारी। 1-2 सेकंड अपनी जगह पर खड़ा रहा और फिर अंदर दाखिल होकर टारच की रोशनी में कमरे का जायजा लेते हुए सूरत हाल समझ गया। टारच की रोशनी दीवार पर रेंगती हुई रोशनदान पर पहुंच गई। रोशनदान की सलाखें गायब पाकर वो चीखता हुआ बाहर दौड़ा। तारीकी और सन्नाटे में उसकी आवाज इस तरह गूंज रही थी जैसे कोई बदरू रो रही हो और वो चीखता हुआ बरामदे में दौड़ा जा रहा था। भागो जल्दी, जरमक ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। जरियाब और कुंदन भी उठ गईं और वो तीनों बरामदे की छत पर मुखालफ सिमत में दौड़ने लगे। जब वो बरामदे के इख्तिताम पर पहुंचे तो दूसरी तरफ से खामस छत पर आ गया था और फिर दफतन खामोश फिदा फायर की आवाज से गूंज उठी। खामस के पास शॉटगन थी और उसने गोली चला दी थी। जरमक ने अपनी टारच रोशन करके उसे छत पर से नीचे फेंक दिया और उसका मकसद पूरा हो गया। खामस ये समझा था कि किसी ने छत से छलांग लगाई थी और वो जलती हुई टारच उसके हाथ में थी और उसने टारच की रोशनी पर फायर कर दिया। फिजा एक बार फिर धमाके से गूंज उठी और उस तरफ से छलांग लगा दो, नीचे कच्ची जमीन है। जरमक ने कुंदन और दरियाब की तरफ देखते हुए कहा। पहले कुंदन ने छलांग लगाई और बरामदे की छत 8 फुट से ज्यादा बुलंद नहीं थी। वो धप की आवाज से नीचे गिरी और उसकी फौरन बाद ही दरियाब ने भी छलांग लगा दी। नीचे गिरते हुए वो बड़ी मुश्किल से अपनी चीख जब्त कर सकी थी। नीचे गिरने के बाद वो पूरी तरह संभल भी नहीं पाई थी कि ऊपर से जरमक ने भी छलांग लगा दी। इस तरफ जरमक ने संभलते हुए कहा। वो तीनों एक तरफ दौड़ने लगे। फिजा एक बार फिर फायर की आवाज से गूंज उठी, लेकिन इस मर्तबा गोली किसी और तरफ चलाई गई थी। वो यकीनन गोपांग था जिसने किसी और तरफ फायर किया था और वो तीनों दौड़ते रहे। अब कुत्तों के भौंकने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो तीनों दौड़ते हुए एक और ब्लॉक में दाखिल हो गए। दरियाब को कुछ अंदाजा नहीं था कि वो किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन बिल आकर वो ज़ैर ज़मीन हालनुमा कमरे में पहुंच गए जहां कुंदन से दरियाब की पहली मुलाकात हुई थी और वो कुंदन को रूह समझी थी। एक बार फिर तारीख सुरंगों का सफर शुरू हो गया और बिल आकर वो उस जगह पहुंच गए जहां हवेली से बाहर निकलने का रास्ता था, लेकिन वो बाहर निकलने की बजाय सुरंग के दहाने के करीब बैठ गए। दहाने पर अगरचा बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, लेकिन रखनों से ताज़ा हवा अंदर आ रही थी। इस भाग दौड़ ने उन तीनों को बुरी तरह थका दिया। दरियाब तो बाकायदा हाँप रही थी। वो सुरंग की दीवार से टेक लगाए बैठी थी और उसने दोनों टांगे सामने को फैला रखी थी।
उसने बड़े नाजो नाम में परवरिश पाई थी और बड़ी आसाइश की जिंदगी गुजारी थी। वो इस तरह भाग दौड़ की आदी नहीं थी, लेकिन जब से उसकी हवेली में आई थी अजीब और गरीब किस्म के हालात से दो चार थी और वो बैठी सोच रही थी कि जिस काम से यहाँ आई थी वो तो बीच में ही रह गया। वो एक नए चक्कर में फंस गई। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो जिस तरह जरमक उसे हवेली से निकाल कर ले गया था, वो सब कुछ भूल कर अपने आप पर बीते हुए वाकयात को भयानक ख्वाब समझते हुए शहर वापस चली जाती। लेकिन तजस्सुस का मादा दरियाब में कूट कूट कर भरा हुआ था। वो राह फरार इख्तियार करने के बजाय जिद करके दोबारा हवेली में आई थी और यहाँ एक बार फिर वो मौत के मुंह में जाते जाते बची थी। क्या ये बेहतर ना होगा कि इस वक्त हम वापस चले जाएं और सुबह दरवेशपुर जाकर पुलिस को इन गैर कानूनी सरगर्मियों की इतला दें और जागीरदार को बाजियाब कराने के लिए पुलिस को साथ लेकर आएं? दरियाब ने कुंदन की तरफ देखते हुए कहा। पुलिस और कुंदन के लहजे में तंज था। एक मरतबा ऐसी कोशिश की जा चुकी है। हमारे ही एक आदमी ने दरवेशपुर जाकर पुलिस से राब्ता किया था। पुलिस वाले बड़ी मुश्किल से यहाँ आने पर आमादा हुए थे और उन्होंने पूरी हवेली छान मारी। उन्हें बाबा तो क्या, बिल्ली का एक बच्चा तक नहीं मिला और जिसे हब्से बेजाब में रखा गया हो। वो चंद लम्हों को खामोश हुई और फिर बात जारी रखते हुए बोली, मेरी जिंदगी का एक तवील अरसा यहाँ गुजरा है। इस हवेली के तहखानों का राज तो मैं भी पूरी तरह नहीं जान सकी। मैं अपने बाबा का सुराग नहीं लगा सकी। पुलिस वाले उन्हें किस तरह तलाश कर सकते हैं? हाँ, अलबत्ता पुलिस की इस कार्रवाई का ये नतीजा जरूर निकला कि हमारा जो आदमी पुलिस को साथ लेकर आया था, चौथे दिन जंगल में उसकी लाश मिली थी और वो इंस्पेक्टर जो पुलिस पार्टी को लेकर यहाँ आया था उसे डी ग्रेड करके दरवेशपुर से कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया। रखेल शाह के हाथ बहुत लंबे हैं। उस रोज अगर वो दरवेशपुर में होता तो पुलिस वाले उस तरफ आने की हिम्मत ना करते, बल्कि शिकायत करने वाले को ही उठाकर टांग देते और वो कराची गया हुआ था। वापस आने के बाद जब उसे पुलिस की इस कार्रवाई का पता चला तो उसने फौरन ही आला अफसरान से राब्ता कायम किया और उस इंस्पेक्टर को डी ग्रेड करवाकर किसी दूर अफ्तादा मकाम पर ट्रांसफर करवा दिया। अब कोई पुलिस अफसर हवेली के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन तुम, दरियाब ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम जागीरदार की बेटी हो, कानूनी तौर पर उसकी वारिस हो और तुम रखेल शाह के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हो। ये तुम्हारा कानूनी हक है। कानूनी हक? कुंदन का लहजा जहर आलूद था। कानून पर हक सिर्फ उसका होता है जिसके हाथ में ताकत हो। कमजोर लोगों को तो वैसे ही जमीन में गाड़ दिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं होता। जहां तक मेरा ताल्लुक है, वो गहरा सांस लेते हुए बोली, उसमें शुबा नहीं कि मैं जागीरदार निमरान की बेटी और उसकी वारिस हूँ, लेकिन मैं 10 साल पहले मर चुकी हूँ। पहले तो मुझे यह साबित करना होगा कि मैं जिंदा हूँ और उसके बाद ही बात आगे बढ़ाई जा सकेगी। लेकिन मैं जैसे ही सामने आई मुझे ख़त्म कर दिया जाएगा। रखेल शाह मेरे वजूद को कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे सामने आ जाने से उसका सारा मंसूबा खाक में मिल जाएगा और वो मुझे मौत के घाट उतारने में ज़रा भी नहीं हचकचाएगा। वो तुम्हें भी अपने रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट समझने लगा है। वो समझता है कि तुम बाबा की कोई अजीज हो और बाबा ने जागीर की विरासत के लिए तुम्हें बुलाया है। वो समझता है कि तुम बाबा की कोई अजीज हो, इसलिए वो तुम्हें बाबा से मिलने नहीं दिया गया। रखेल शाह बहुत कमीना आदमी है और वह हर उस शख्स को मौत के घाट उतार देगा जिसका बाबा से कोई तल्लक होगा। ये तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि हमें बर वक्त तुम्हारे बारे में इतला मिल गई और हमने तुम्हें उनके चुंगल से निकाल लिया और बाबा को अब तक इसलिए जिंदा रखा गया है कि रखेल शाह को भी उनकी ज़रूरत है। उनके दस्तखतों के बगैर रखेल शाह का मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता और जैसे ही उसकी ज़रूरत पूरी हुई वो बाबा को भी ख़त्म कर देगा। लेकिन हमें उससे पहले बाबा को उनकी कैद से निकालना होगा। ये रखेल शाह कौन है? दरियाब ने पूछा। जागीरदार के एक नमकखवार का बेटा, कुंदन ने जवाब दिया, और उसका बाप बहुत शरीफ आदमी था। उसके इंतकाल के बाद रखेल शाह को मेरे बाबा ने ही पाला और उसे आला तालीम दिलवाई और फिर उसे अपनी जागीर का मैनेजर मुकर्रर कर दिया। वो मुझसे उम्र में 2-4 साल ही बड़ा है और जब वो तालीम के सिलसिले में दरवेशपुर में था तो उसने कुछ नापसंदीदा किस्म के लोगों से दोस्तियां गांठ लीं। वो कॉलेज की छुट्टियों में अपने उन बदमाश दोस्तों को हवेली में भी लाने लगा और बाबा ने पहले तो रखेल शाह को नरमी से समझाने की कोशिश की, मगर उसके कान पर जूं तक नहीं डेंगी और वह बेदस्तूर अपने दोस्तों को यहाँ लाता रहा। एक मरतबा बाबा के एक दोस्त अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए हुए थे
और उनकी 2 जवान बेटियां थीं। रखेल शाह और उसके दोस्तों ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की और बाबा को उसका पता चल गया। बाबा ने रखेल शाह को डांटा और उसे एक हल्का सा थप्पड़ मार दिया और बाबा ने उसे ये थप्पड़ बेटा समझकर मारा था और उन्होंने उसे बेटे ही की तरह पाला था। लेकिन रखेल शाह ने उसे अपनी तौहीन समझा और वह अपने दोस्तों को लेकर दरवेशपुर से चला गया। उसने 2 साल तक हवेली का रुख नहीं किया और बाबा उस अरसे में उस वाक़े को भूल गए। लेकिन रखेल शाह बड़ा कीना परवर आदमी है और उसने बात दिल में रखी। वो इंतकाम की आग में जलता रहा और जब वो तालीम मुकम्मल करने के बाद वापस आया तो बाबा ने उसे असिस्टेंट मैनेजर मुकर्रर कर दिया। तो उसने अपनी साजिशों पर अमल करना शुरू कर दिया। उसने आहिस्ता आहिस्ता हवेली के वो तमाम मुलाजिम निकाल दिए जो हवेली के वफादार थे। इस दौरान उसने लाखों रुपए के गबन कर लिए और बाबा ने उसे तंबीह करके छोड़ दिया। वो दरअसल जागीर पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा था और उसके ख्याल में आसान तरीका ये था कि वो मुझसे शादी कर ले और जागीर का मालिक बन जाए। उसने बाबा से मेरा रिश्ता भी मांगा मगर बाबा ने इनकार कर दिया और फिर एक रात उसने मेरे साथ दस्तराजी की कोशिश की तो मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए हवेली की फसील से छलांग लगा दी। मुझे रज़मक का वालिद उठाकर ले गया और बाद में मुझे पता चला कि बाबा ने रखेल शाह को मुलाजमत से निकाल दिया। अपने वालिद के कत्ल के बाद ज़रमक मुझे और खुशनुमा को लेकर मुल्क से बाहर चला गया। उधर रखेल शाह बाबा के खिलाफ अपनी साजिशों के जाल फैला रहा था। 2 साल पहले उसने हवेली पर कब्जा करके बाबा को कैद कर दिया। उसने ये मशहूर कर दिया कि बाबा बीमार हैं और उन्होंने उसे दोबारा जागीर का मैनेजर मुकर्रर कर दिया है। जागीर के नाम पर वह अपने तलकात बढ़ाता रहा। उसने बड़े बड़े लोगों से तलकात अस्तवार कर लिए। दौलत के बलबूते पर उसने बाद आला सरकारी अफसरों को मुट्ठी में ले रखा है। जब हवेली का एक खैर ख्वाह पुलिस को लेकर यहाँ आया था तो रखेल शाह उस रोज दरवेशपुर में नहीं था। इंस्पेक्टर भी शायद नया था और रखेल शाह के बारे में ज़्यादा नहीं जानता होगा, इसलिए पुलिस पार्टी लेकर यहाँ आ गया था, जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ा। उसे रखेल शाह के इशारे पर डी ग्रेड करके दूर अफ्तादा मकाम पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। कानून का सहारा लेना हर शहरी का कानूनी हक है, लेकिन यहाँ तो हर शख्स को उसके हक से महरूम कर दिया गया है। कानून सिर्फ उन लोगों का साथ देता है जिनके पास दौलत ताकत हो और यहाँ हक मांगा नहीं जाता। अगर बाबा की ज़िंदगी खतरे में ना होती तो मैं रखेल शाह से कानूनी जंग ज़रूर करती, लेकिन मुसीबत यही है कि बाबा उसी की कैद में हैं। अगर मैं रखेल शाह के खिलाफ अदालत से रजू करूं तो वो मुझे ब्लैकमेल कर सकता है। लेकिन सबसे पहली बात तो मेरी शनाख्त है। सब लोग यही समझते हैं कि मैं 10 साल पहले हवेली के फसील से गिर कर हलाक हो गई थी। उसके बाद मैं 10 साल तक गायब रही। किसी को इल्म नहीं था कि मैं ज़िंदा हूँ। इस दौरान अगर एक आध बार भी सामने आई होती तो मेरा ज़िंदा होने का तासर कायम रहता, लेकिन मेरे गायब हो जाने से सब ने, यहाँ तक कि मेरे बाप ने भी मुझे मुर्दा समझ लिया। रखेल शाह जैसे आदमी के सामने अपनी शनाख्त साबित करना बड़ा मुश्किल होगा, मामला तवील हो जाएगा और इस तरह बाबा की ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ जाएगी। इसलिए मैंने यह कठिन और जानलेवा रास्ता इख्तियार किया है। बाबा को उनकी कैद से राहत दिलाने के बाद मैं खुल कर सामने आऊँगी। इसका मतलब है कि यह सब कुछ आसान ना होगा, ज़रियाब ने कहा। हाँ, कुंदन ने जवाब दिया, और ऐन मुमकिन है कि उसमें मेरी जान भी चली जाए और तुम्हारे लिए भी बहुत खतरात हैं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब भी यही मशवरा दूंगी कि तुम इस खानदान की रिसर्च का ख्याल ज़हन से निकाल कर वापस चली जाओ। बात रिसर्च से बहुत आगे निकल चुकी है, ज़रियाब ने कहा। हवेली में आने के बाद कुछ अजीबोगरीब बातें सामने आई हैं जिनसे मेरा जहन बुरी तरह उलझ कर रह गया है और जब तक उनकी वजाहत हासिल ना कर लूँ मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकती। कैसी बातें? कुंदन ने पूछा। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरा तलक भी उसी खानदान से है, ज़रियाब ने जवाब दिया। यहाँ आने से पहले मैंने अपने वालिद के कागजात में से चंद तस्वीरें निकाली थीं और जिस रात मैं हवेली में आई थी वो तस्वीरें उसी रात मेरे सूट केस में से चोरी हो गई थीं। मुझे यकीन है कि वो तस्वीरें खामस ने चुराई होंगी और उस वक़्त रखेल शाह के कब्जे में होंगी। लेकिन उनमें एक तस्वीर ऐसी थी जिसके साथ की एक बड़ी तस्वीर इस हवेली के कमरे में आवीज़ा है और मैंने हवेली में एक और पोर्ट्रेट भी देखा है। उस चेहरे पर मेरे मरहूम बाप की शबाहत है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे वालिद का इस हवेली से क्या तल्लुक़ हो सकता है। अगर कोई तल्लुक़ नहीं तो वो तस्वीर मेरे वालिद के पास क्यों थी?
कौन सी तस्वीर की बात कर रही हो? कुंदन ने पूछा। तुम्हारे वालिद के दादा जीदार बख्त की तस्वीर, ज़रियाब ने जवाब दिया। और उस रात मैंने तुम्हारे बाबा से उस तस्वीर का जिक्र किया था और उन्होंने भी बताया था कि वो उनके दादा की तस्वीर है। ओहो, और कुंदन के मुंह से बेख्तियार निकला, तुम्हारे वालिद ने उस तस्वीर के बारे में तुम्हें भी कुछ नहीं बताया? नहीं, इस मौजू पर कभी बात नहीं हुई थी, ज़रियाब ने जवाब दिया। उन्होंने कभी इस हवेली का भी जिक्र नहीं किया था। ख़ानदान के बारे में रिसर्च का ख्याल तो मुझे उनके इंतकाल के बाद आया और मैंने उनके पुराने कागजात को भी अच्छी तरह चेक नहीं किया। हो सकता है कि उनमें कुछ ऐसे कागजात भी हों जो इस राज से पर्दा उठा सकें, लेकिन ये सब कुछ उसी वक्त मुमकिन होगा जब यहाँ से वापस जाऊँगी। हो सकता है कि तुम्हारी वालदा को इस सिलसिले में मालूमात हासिल हों, कुंदन ने कहा। नहीं, ज़रियाब ने नफ़ी में सर हिलाया। मेरी वालदा इस सिलसिले में ज़्यादा नहीं जानती क्योंकि उनका ताल्लुक सुंदस ख़ानदान से नहीं, और मेरी अब तक की मालूमात के मुताबिक सुंदस ख़ानदान के लोग शादी ब्याह अपने ही ख़ानदान में किया करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने पुरानी रवायात को भुलाकर ख़ानदान से बाहर भी रिश्ते नाते जोड़ना शुरू कर दिए। मेरे वालिद का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता है और उन्होंने भी ख़ानदान से बाहर शादी की थी। उन्होंने मेरी वालदा को अपने ख़ानदान के बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताया होगा, लेकिन वो मालूमात यकीनन ऐसी नहीं कि उनसे मुझे कुछ मदद मिल सके। तुम्हारे बाबा ने मुझे खत में लिखा था कि उनके पास कुछ कदीम दस्तावेज़ात हैं और मुझे यकीन है कि उन दस्तावेज़ात से बहुत से सरबस्ता राज खुल सकते हैं, लेकिन ये मामला इस कदर उलझ गया है कि आसानी से हल होता हुआ नज़र नहीं आता। अब सबसे पहले हमें तुम्हारे बाबा को उनकी कैद से निजात दिलाना है और उसके बाद ही ये पेचीदा गिरें खुल सकेंगी। कुंदन कुछ कहना चाहती थी कि सुरंग के बाहर घोड़े के हिनहनाने की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने घोड़ों को जिस जगह दरख्तों से बांधा था वो जगह सुरंग के दहाने से ज़्यादा दूर नहीं थी। ज़रमक पत्थर को हटाकर सुरंग से बाहर निकल गया और वो बड़ी एहतियात से कद आदम गुंजान झाड़ियों से निकलकर बाहर आ गया। उसके एक हाथ में चाकू था और दूसरे हाथ में टार्च। वो झाड़ियों में खड़ा कुछ देर तक झाड़ियों में दुबका सामने देखता रहा और फिर झाड़ियों से बाहर आ गया। घोड़ियों के हनहनाने से जोर जोर से पैर पटकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ज़रमक उसी अंदाज में चलता हुआ आगे आ गया। एक घोड़ा ज़मीन पर गिरा हुआ इस तरह लौट लगा रहा था जैसे अजियत में मुब्तला हो। दूसरे घोड़े भी बुदक रहे थे और ज़रमक ने टार्च रोशनी कर ली और दूसरे ही लम्हे चौंक गया। एक स्याह नाग गिरे हुए घोड़े की टांग से लिपटा हुआ था और ज़रमक को समझने में देर नहीं लगी कि उस घोड़े को सांप ने डस लिया था। रोशनी पड़ते ही सांप ने घोड़े की टांग से बल खोल लिए और तेजी से रेंगता हुआ झाड़ियों में गायब हो गया। ज़रमक ने आगे बढ़कर टार्च की रोशनी में घोड़े का जायजा लिया और उसके मुंह से झाग बह रहा था। कोई बहुत ही जहरीला सांप था। ज़रमक के ख्याल में उस घोड़े का जिंदा बचना बहुत मुश्किल था और वो कुछ देर तक घोड़े को तड़पते हुए देखता रहा, फिर वापस आ गया। ज़ाहिर है कि वह दम तोड़ते हुए घोड़े की कोई मदद नहीं कर सकता था। ज़रमक सुरंग में वापस आ गया और उन्हें सूरत हाल से आगाह करने लगा। वो रात उन्होंने सुरंग में बैठकर ही गुजारी थी। सुरंग के बाहर सुबह की बहुत मध्यम रोशनी फैलना शुरू हो गई। ज़रमक और उन दोनों को वहीं रुकने का इशारा करके सुरंग के अंदरूनी हिस्से में गायब हो गया। उसकी वापसी तकरीबन 1 घंटे बाद हुई। हवेली खाली है, वो लोग कहीं जा चुके हैं, ज़रमक ने बताया। क्या? और कुंदन उछल पड़ा। मैं सच कह रहा हूँ, हवेली में किसी का नामो निशान नहीं, ज़रमक ने जवाब दिया। चलो मेरे साथ चलो। कुंदन एक झटके से उठ गई। वो तीनों सिंग में चलते हुए हवेली की एक इमारत के कमरे में पहुंच गए। ज़रमक ने गलत नहीं कहा था। हवेली में किसी की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी और वो मोहतात अंदाज में हवेली के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमते हुए उस इमारत में आ गए जहाँ किचन भी था और गोपांग वाला कमरा भी। ज़रमक चाकू हाथ में लिए चारों तरफ देख रहा था और उनके साथ किसी किस्म का धोखा भी हो सकता था, लेकिन उसका खदशा बेबुनियाद निकला। हवेली में किसी जी रूह का नामो निशान नहीं था और वह जैसे ही गोपांग वाले कमरे में दाखिल हुए तीनों उछल पड़े और सामने ही फर्श पर एक औरत की लाश पड़ी थी। वो तीनों दौड़कर उसके करीब पहुंचे और वो औरत खून में लथपथ थी और सीने में दस्ते तक एक खंजर प्यूसत था। ज़रमक लाश के करीब घुटनों के बल बैठ गया और उसने जैसे ही सीने में प्यूसत खंजर की तरफ हाथ बढ़ाया, उस औरत ने आंखें खोल दी। वो जिंदा थी। ज़रियाब और कुंदन भी उस पर झुक गईं और वह दोनों गहरी नज़रों से औरत के चेहरे को देख रही थी। मम्मा मत खींचो और मेरे सीने से खंजर मत खींचो। उस जख्मी औरत के होंठों से सरसराती हुई बहुत सी कमज़ोर सी आवाज़ निकली।
जरमक ने जल्दी से अपना हाथ खंजर के दस्ते से हटा लिया और मुड़कर दरियाब और कुंदन की तरफ देखने लगी। दरियाब ने कुंदन की तरफ देखा और फिर उस औरत की तरफ देखने लगी जिसे वह मुर्दा समझे थे। उसका जिस्म जख्मों से चूर था, कपड़े फटे हुए थे और दोनों बाहों पर भी जख्मों के निशान थे। दाएं रुखसार पर आंख से लेकर जबड़े तक एक लंबा जख्म था और जिससे खून रस रहा था। पेट पर भी जख्म के 2 निशान थे और उसके फटे हुए कपड़ों और जिस्म पर जख्मों के इन निशानात से अंदाज़ा लगाना दुश्वार नहीं था कि उसने ढेर होने से पहले अपने बचाव के लिए खासी मज़ाहमत की होगी और फिर सीने में खंजर प्यूसत करने के बाद वो लोग उसे मुर्दा समझकर छोड़ गए थे। तुम कौन हो और क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो? दरियाब ने मजीद झुकते हुए कहा और उसकी नजरें जख्मी औरत के चेहरे पर मरकूज थीं। उस औरत ने आंखें खोल दी और उसके चेहरे पर बेपनाह करबो अजियत के एहसास थे। आंखों में वीरानी थी। उसने 2-3 मरतबा पलकें झपकी, फिर कुछ कहना चाहा मगर होंठ फड़फड़ा कर रह गए। तुम कौन हो और इस हवेली में कैसे आई थी? वो लोग कहाँ गए? दरियाब ने कहा, हाँ, कोशिश तो करो कि तुम बोल सकती हो, हिम्मत से काम लो। जागीरदार की जिंदगी खतरे में है और उस औरत के होंठों से एक फिर सरसराती वैसी आवाज़ निकली और आवाज़ इस कदर कमज़ोर थी कि दरियाब को मजीद नीचे झुकना पड़ा। जागीरदार कहाँ है और वो लोग कहाँ हैं? तुम कौन हो? दरियाब ने पूछा। मेरा नाम रोशन है। और उस औरत के होंठ एक बार फिर फड़फड़ाए। मैं नर्स हूँ। और वो रुक रुक कर बताने लगी, ये लोग मुझे बहुत अरसा पहले किसी बीमार की देखभाल के लिए लाए थे और यहाँ आकर मुझे ये पता चला कि जिस मरीज़ की देखभाल के लिए मेरी खिदमत हासिल की गई हैं वो जागीरदार इमरान है। और दूसरे दिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने जागीरदार को कैदी बना रखा है।